Educations. Already we have completed few of the lectures from the section 4 water resources and environmental science, and continuing with that section ahead हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन के अंदर. तो आज का हमारा टॉपिक्स रहेगा इवापोरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवापोरेशन, इवापोरेशन मेजरमेंट्स एंड ट्रांसपिरेशंस. सो moving ahead with the topics one by one. So what is evaporation? The process in which there is a change in the liquid state to the gaseous state at a free surface below the boiling point through the transfer of heat. We all know that what is evaporation, and very simply I can explain that जो वाटर की फ्री सरफेस होती है, जो सबसे टॉप सरफेस होती है, जो डायरेक्टली सनलाइट के कांटेक्ट में होता है, तो ड्यू टू दैट हीट एनर्जी द अपर सरफेस और द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी गेट्स हीटेड, एंड ड्यू टू दैट हीटिंग इफेक्ट the water molecules get transferred from liquid state to the gaseous state, and this is known as evaporation. Now what will be the factors that affect the rate of evaporation from the free surface water? कौन से फैक्टर्स होंगे जो रेट ऑफ इवापोरेशंस को अफेक्ट करेगा? रेट ऑफ इवापोरेशंस में टाइम के साथ में कितना ज़्यादा इवापोरेशन हो रहा है, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं, या तो फिर उस कौन से फैक्टर्स हैं जो उस रेट को इफेक्ट कर सकता है. सो द फर्स्ट वन इज द वेपर प्रेशर एट द फ्री सरफेस, एयर एंड वाटर टेम्परेचर. ऑब्वियसली जितना एयर और वाटर का टेम्परेचर रहेगा उसके अकॉर्डिंग इवापोरेशन रेट बढ़ जाएगा. ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा. अगर बहुत ही ठंडा है, विंटर के टाइम देखें तो हम उस टाइम पे इवापोरेशन रेट बहुत ही लो होता है. वाई? बिकॉज द हीट एनर्जी इज नॉट दैट मच सफिशिएंट, राइट. नेक्स्ट, wind speed. Wind speed also plays a very important role in the rate of evaporations, because somewhat from the land side, if the hot air blows, then due to convective effect also the free surface of the water body gets heated, and due to that evaporation will takes place. So wind speed, air and water temperature, vapor pressure. Fourth one is the atmospheric pressure. Then comes your quality of water. Very important, quality of water also very much effective. If you can see or analyze at your home also, आप घर में आप देखेंगे कि जैसे ही आप कुछ हाई TDS वाले पानी को जैसे बॉईल करेंगे तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन एक क्लियर वाटर को जैसे आप बॉईल करने जाएंगे तो वो बहुत ही ईजिली इवापोरेट हो जाएगा, राइट. सो द क्वालिटी ऑफ द वाटर ऑल्सो मैटर्स अ लॉट इन द रेट ऑफ इवापोरेशन. Next is your humidity and the size of the water body. Sorry friends, यहाँ spelling mistake है, body में y रह गया है. So next, how to calculate the rate of evaporations? Very important. May comes that in 1 mark question, 1 mark के question में ये आ सकता है that value will be given, constant value, then saturation vapor pressure and actual vapor pressure, and you have to calculate the evaporation rate. So this is the formula to calculate the evaporation rate. EL is equal to C, that is your constant. Then comes ES minus EA. ES is what? ES is your saturation vapor pressure in mm of mercury, and EA is actual vapor pressure. So putting all these values into this formula, you can easily calculate the rate of evaporation. Okay, so next, these are the some of the important points that are to be kept in your mind. आप इसको याद रखिए. जब भी सैचुरेशन वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा या तो एक्चुअल वेपर प्रेशर के बराबर होगा तो इवापोरेशन होगा, है ना. सैचुरेशन वेपर प्रेशर एक्चुअल वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा या उसके बराबर होगा, तब जाके इवापोरेशन टेक्स प्लेस होगा. और जैसे ही आपका सैचुरेशन वेपर प्रेशर एक्चुअल वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा? कंडेंसेशन होगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस. मे आस्क इन द फॉर्म ऑफ ए कंडीशंस दैट which of the following is the correct statement regarding to evaporation. तो इवापोरेशन के रेट में कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है या कौन से इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है वो आपको चूज करने होंगे. तो ये पॉइंट्स दिए रहेंगे.
फर्स्ट वन विल बी गिवन और सेकंड वन विल बी गिवन और बोथ विल बी गिवन और नन ऑफ द गिवन, तो आंसर आपका इवापोरेशन के केस में आ जाएगा ES इज ग्रेटर देन और इक्वल टू EA. ओके, मूविंग अहेड. द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल डिपेंड्स ऑन. अब जो सॉइल के अंदर मॉइस्चर है उस मॉइस्चर का इवापोरेशन रेट कैसे, किस पे डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर्स है जिस पे वो डिपेंड करता है रेट ऑफ इवापोरेशन फ्रॉम सॉइल. तो उसके अंदर आप देखेंगे कि सॉइल मॉइस्चर कंटेंट क्या है. अगर बहुत ही ज़्यादा रहेगा, हीट बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इवापोरेशन रेट ज़्यादा होगा, राइट. इफ योर सॉइल कैपिलरी कैरेक्टरिस्टिक ऑल्सो मैटर्स अ लॉट इन द रेट ऑफ इवापोरेशन फ्रॉम द सॉइल. कैपिलरी कैपेसिटीज, जैसे कि मैं अगर आपको बात करूं, ये आपका एक ग्राउंड है, राइट. देन दिस इज योर वाटर टेबल, दिस इज योर वाटर टेबल, ओके. दिस इज योर ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड है. अगर आपका जो सॉइल है, ये जो सॉइल है इसमें जो कैपिलरीज हैं, है ना, दीज आर द कैपिलरीज. अगर ये कैपिलरीज बहुत ही फाइन है, बहुत सारे हैं, बहुत ही ब्रांचेस हैं और ये कैपिलरीज डायरेक्टली अप टू द ग्राउंड सरफेस तक है, तो क्या होगा, ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा, ये जो ग्राउंड वाटर है या इस सॉइल के अंदर जो भी मॉइस्चर है वो क्या करेगा, कैपिलरीज के अंदर का पूरा एब्जॉर्ब करेगा और फिर उसको इवापोरेट कर देगा ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट, है ना. तो ये कैपिलरीज के अंदर के जो भी मॉइस्चर है, अगर आपकी कैपिलरीज बहुत ही अच्छी डेवलप्ड है सॉइल के अंदर, तो वो ऑब्वियसली उसका इवापोरेशन रेट बढ़ जाएगा. लेकिन अगर सॉइल का कैपिलरीज बहुत ही कॉम्पैक्टेड है, कैपिलरीज बहुत ही फाइन नहीं है, बहुत अच्छे नहीं है, सो दैट कि वाटर कैन पास, in that case, in compacted soil case, what will happen, due to the poor quality of the capillary fringes of the soil, the evaporation rate of the moisture from the soil will be less. Okay, so the capillary characteristics also matters a lot. Then comes the depth of water table. Obviously, अगर आपका वाटर टेबल का डेप्थ बहुत ही ज़्यादा है तो जो हीटिंग इफेक्ट मिल रहा है आपको ग्राउंड सरफेस पे, वो नीचे तक नहीं पहुंच पाएगा, है ना. नहीं पहुंच पाने की वजह से क्या हो रहा है कि आपका वाटर सरफेस हीट नहीं हो पा रहा है, सो डैट जो मॉइस्चर हो रहा है, मैंने जैसे कि अभी आपको यहाँ बताया कि कैपिलरीज की वजह से जो ग्राउंड वाटर टेबल है उससे ड्यू टू कैपिलरी एक्शंस कुछ सॉइल पोर्शन मॉइस्ट हो जाएगा और हीटिंग इफेक्ट टॉप सरफेस से नीचे तक नहीं पहुंच पाने की वजह से, है ना. देखिए ये आपका ग्राउंड सरफेस है, ये वाटर टेबल का टॉप पोर्शन है और ये वाटर टेबल का बॉटम पोर्शन है. अगर आपके कैपिलरीज यहाँ तक ही डेवलप्ड है और क्या हो रहा है कि जो ग्राउंड वाटर का मॉइस्चर है वो कैपिलरीज में यहाँ तक ही रह पा रहा है, ठीक है. लेकिन जैसे ही हीटिंग इफेक्ट की वजह से जो हीट एनर्जी है वो हीट एनर्जी आपका इस सरफेस तक ही रह जाता है, इससे वो नीचे जा ही नहीं पा रहा है. तो इस केस में क्या होगा कि जो कैपिलरीज के वाटर हैं वो इवापोरेट नहीं हो पाएंगे, राइट. सो द डेप्थ ऑफ वाटर टेबल ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर आपका ये जो वाटर टेबल का डेप्थ है वो अगर राइज होके इस लेवल तक आ जाए, है ना, इस लेवल तक अगर आपका वाटर टेबल आ जाएगा तो क्या होगा कि कैपिलरी एक्शंस की वजह से ये ग्राउंड सरफेस तक पहुंच सकता है आपका मॉइस्चर. ग्राउंड वाटर का मॉइस्चर कैपिलरी एक्शंस की वजह से क्या होगा, सरफेस तक पहुंच जाएगा एंड ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑन द सरफेस वो इजीली इस वाटर को क्या करेगा, इवापोरेट कर देगा. सो ग्राउंड वाटर टेबल इज वेरी मच ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द रेट ऑफ इवापोरेशन, बहुत ही मैटर करता है. देन कम्स द कलर ऑफ द सॉइल. ऑब्वियसली इफ द सॉइल इज हैविंग डार्क कलर का सॉइल होगा तो वो मोर हीट एब्जॉर्ब करेगा एंड दैट विल increase the temperature and hence it will enhance the evaporation rate, right. So these are the factors that affect the rate of evaporation of moisture from the soil. Moving ahead, how you are going to measure the evaporation measurement हम कैसे करेंगे evaporations का. So there are some of the standard methods to calculate the evaporation. The first one is the evaporimeter, in which there are total 4 methods: class A evaporation pan, ISA standard pan, Colorado Sunken pan and US Geological Survey pan. Now just you have to remember these 4 names.
आपको ये 4 नेम्स याद करने हैं, एमसीक्यू में आएगा, बाकी इसके बेसिस पे कोई न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस नहीं है. सो जस्ट रिमेंबर द नेम्स. ओके, नाउ इवापोरीमीटर के अंदर आप देख सकते हैं कि जो पहला मेथड है वो क्लास ए इवापोरेशन पैन है. Second one is ISI standard pen. This ISI standard pen is nothing but a modified version of Class A evaporation pen. Class A evaporation pen का modified version है ISI standard pen. Okay. Then third one is your Colorado Sunken pen and fourth is US Geological Survey pen. Moving ahead one by one. And lake evaporation. Many times गेट के अंदर लेक इवापोरेशन के बेसिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. So you must be very much aware about what is lake evaporation. If we look into the evaporation, हमें पता है evaporation क्या होता है. लेक क्या है? एक बॉडी है जहाँ से evaporation takes place करेगा. Now ये चीज़ तो हमें पता चल गया कि lake evaporations होता क्या है, but how to calculate the lake evaporation? So here is a formula to calculate the lake evaporations. Lake for evaporation is equal to Cp into the pan evaporation. Cp into pan evaporation. Now here this Cp is your pan coefficient. Cp is what? Your pan coefficient. And the value of Cp is different as per the type of pans. Okay, so accordingly you have to use this tabular formula of table for टेकिंग द वैल्यू ऑफ सीपी. सीपी की वैल्यू लेने के लिए आपको इस टेबल की मदद लेनी होगी और आपको याद भी रखना होगा, क्योंकि एग्जाम्स में ये दिया नहीं जाएगा. एग्जाम्स में डायरेक्ट न्यूमेरिकल में दिया रहेगा अ क्लास ए लैंड पैन इज यूज्ड फॉर सो एंड सो कैलकुलेशन ऑफ लेक इवापोरेशंस एंड द पैन इवापोरेशन विल बी गिवन. सो अकॉर्डिंगली फॉर द टाइप ऑफ पैन यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू दी हुई है, रेंज वैल्यू दी है, तो सीपी की वैल्यू आप इसमें से कोई भी रेंज में से ले सकते हो, कुछ भी है ना. 0.60 से 0.80 के बीच का कोई भी वैल्यू ले लोगे और आप उसको जैसे ही फॉर्मूला में पुट ऑन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? लेक इवापोरेशन. फाइन. सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. जैसे ये सेक्शन कंप्लीट होगा मैं लास्ट में आपके लिए एक रिविजन सेक्शन रखूंगा. रिविजन सेक्शन के अंदर हम सभी फॉर्मूलाज को एक साथ रख के उसके बाद सभी फार्मूलाज जैसे ही हमारे डिस्कशन हो जाएंगे उसके बाद हम तुरंत ही वो सभी फार्मूलाज के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स देखने शुरू कर देंगे. ओके, मूविंग अहेड. नाउ द इवापोरेशन स्टेशन. अब इवापोरेशन स्टेशन का हम सिलेक्शन कैसे करेंगे, कितने एरिया के अंदर हमारा कितना स्टेशन रखना है. सो द WMO recommends the minimum network of evaporimetry station as below. अगर आपका एरिड जोन है, एरिड जोन में आपको क्या करना है कि एक स्टेशन रहेगा, वन स्टेशन विल बी देयर फॉर एवरी 30,000 स्क्वायर किलोमीटर में. फॉर ह्यूमिड टेम्परेट क्लाइमेट वन स्टेशन फॉर एवरी 50,000 एंड फॉर कोल्ड रीजन वन स्टेशन फॉर 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर. सो इसके बेसिस पे हम कैलकुलेट इजीली कर लेंगे कि इवापोरेशन कितना हो रहा है. सो दिस इज द वे हाउ टू कैलकुलेट द लेक इवापोरेशन एज वेल एज द इवापोरेशन ऑफ फ्रॉम द डिफरेंट बॉडीज यूजिंग डिफरेंट इवापोरीमीटर एंड हाउ टू सिलेक्ट द नंबर ऑफ स्टेशन. ओके, मूविंग अहेड. This is a class A evaporation. Here you can see that it is a made up of material. At the basement a wooden support is given and it is made up of unpainted galvanized iron sheet. Unpainted galvanized iron sheet is being kept from inside and a monol metal is used. दो metals से इस पेन का डिजाइन किया जाता है और बेस में आपको वुडन का सपोर्ट दिया जाता है सो दैट द हीट कैन नॉट ट्रांसफर टू दी अंडर द बॉडी. बॉडी के नीचे साइड के जो पोर्शन पे क्या होगा वो हीटिंग इफेक्ट ना आ जाए, इसके वजह से इंसुलेशन का काम करने के लिए हम वुडन का सपोर्ट देते हैं. और ऊपर साइड पे अनपेंटेड गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट और मोनल मेटल का यूज करके इसको डिजाइन किया जाता है. तो आप यहाँ डायमेंशंस देख सकते हैं कि ग्राउंड लेवल से वो 150 mm ऊपर रहता है, राइट. एंड द डायामीटर, पैन है ऑब्वियसली, पैन कैसा होता है? राउंड होता है, सर्कल. सो द डायामीटर ऑफ दिस पैन इज
1 to 10 mm, right? Here you can see the water level आपको टॉप लेवल से 50 mm नीचे तक ही भरना होता है. ओके, सो दिस इज योर क्लास ए इवापोरेशन पेन. नेक्स्ट, कोलोराडो सनकैन पेन. अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो मेथड है, ये जो पेन है, इस पेन में क्या होता है कि आपका जो पेन है जो एक अनपेंटेड गैल्वेनाइज्ड शीट से बना रहता है, वो ग्राउंड के अंदर बरीड किया जाता है. पिट बना के उसको अंदर साइड पे इंस्टॉल किया जाता है, जो कि ग्राउंड सरफेस से जस्ट 50 mm ऊपर रहता है. ओके, एंड द वाटर लेवल विल बी 50 mm बिलो दैट सरफेस, टॉप सरफेस ऑफ द बॉडी. तो यहाँ तक आपको पानी भरना है. और ये जो टोटल हाइट होती है पेन की, ये 460 mm होता है. एंड द डायमीटर ऑफ दिस पेन इज 920 mm. ओके फ्रेंड्स, देर आर सम ऑफ द advantages of this pen that due to the radiation and the aerodynamic character of this pen, the heating effect is much good. And there are some of the disadvantages of this pen, and the advantages are like it is very much difficult to detect the leak, and you have to take the extra care to keep the surrounding area free from dust and any other foreign materials. Why we have to take the extra care? Because if such dust or any other foreign materials come into that surface, then it will affect our what? Heating effect and the evaporation rate. That's why you have to take the extra care of it, and installing this system is very much expensive. So everyone are not using this method to calculate the evaporation rate. Fine. Moving ahead. There are some empirical equation also to calculate the evaporation, and the first one is the Mears formula and Rower's formula. So very important from exam point of view. You have to practice a lot of the questions from this section. Okay, so moving ahead with the formula one by one. The Mears formula, here you can see that Mears formula is given by EL is equal to Km bracket EW minus EA. Here you can write ES also, it's a saturation vapor pressure. So EW minus EA bracket close, then again bracket 1 plus U9 upon 16. Now let's see the terms one by one. So this formula is very much important, Mears formula, to calculate this. Okay, may ask that calculate the lake evaporation using the Mears formula, then you have to use this. If you've been asked that calculate the lake evaporation and as per the given data, you can select that which formula will be implemented to calculate the lake evaporations. तो based on the given data आपको select करना है कि lake evaporations कौन से method से या कौन से formula से हमको calculate करना है, right? So अब अगर आपका data में आप देख सकते हो कि saturation vapor pressure given है, right, in the form of mm of mercury, mm of Hg. Saturation vapor pressure दिया हुआ है. Apart from that, the actual vapor pressure is also given. Then the monthly mean wind velocity at a height of 9 meter above the ground surface is also given, and the Km value, that is the coefficient accounting for the other factors. Like अगर आपका जो वाटर है, बॉडी है, वो बहुत ही डीप है, लार्ज है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, Km की वैल्यू 0.36 ले लेंगे. अगर आपका वाटर बॉडी शैलो है, बहुत ही स्मॉल है, तो हम Km की वैल्यू 0.50 लेंगे, राइट? देखो, अब ये जो है स्मॉल शैलो लेक एंड द लार्जर डीप वाटर्स, ये चीज़ आपको कहाँ पता चलेगी? ये आपको पता चलेगी क्वेश्चन के अंदर. क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ मेंशन होगा, तो आपको क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, सो डैट आपको पता चले कि Km की वैल्यू हम कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कौन सा लेंगे, दो में से, ठीक है ना? इफ इन द क्वेश्चन it is mentioned that the value of Km is given directly, then you have to take that value. If not, if it is given in the form of a statement that the large deep water, for the large deep lake calculate the lake evaporation, then in that case you have to take the Km value 0.36. okay, so accordingly as per the question you have to take the value of Km, right?
and also the wind velocity will be given if somewhat बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या होता है कि विंड वेलोसिटी एट 1 मीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस दिया रहता है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा कि विंड वेलोसिटी 9 मीटर अबाउ द ग्राउंड सरफेस पे आपको कैलकुलेट करना होगा। तो वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, राइट? अगर आपको विंड वेलोसिटी ग्राउंड सरफेस से 1 मीटर ऊपर की दी जा रही है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन आपको फॉर्मूला के अंदर विंड वेलोसिटी 9 मीटर अबाउ द ग्राउंड सरफेस कैलकुलेट करना है, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस के अंदर आपके पास एक दूसरा फॉर्मूला आता है, राइट हियर देखिए, हियर इट इज गिवन सी the wind velocity can be assumed to follow the 1/7 power law। इस लॉ की मदद से आपको यूज करना है। तो UH इज इक्वल टू व्हाट? UH इज इक्वल टू C देन H रेज टू 1/7, 1/7 पावर यूज करके ये फॉर्मूला की मदद से आपको किसी भी हाइट पे दी गई हुई विंड वेलोसिटी को आप इजीली विंड वेलोसिटी एट 9 मीटर अबव हाइट पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है? सो दिस फॉर्मूला इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। विच वन? यहां देख सकते हो, UH इज इक्वल टू CH रेज टू 1/7। नाउ UH इज विंड वेलोसिटी एट अ हाइट H अबव द ग्राउंड सरफेस। अगर आप ये दोनों का रेशियो निकाल लोगे U9 अपॉन U1, तो अकॉर्डिंगली C और C कांस्टेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, और H की जगह पे आपको क्या रखना है? U9, अगर U9 है तो H की वैल्यू हो जाएगी 9, और U1 है तो H की वैल्यू हो जाएगी 1। सो अकॉर्डिंगली बाय टेकिंग द रेशियो यू कैन कैलकुलेट द U9, राइट? नेक्स्ट द रॉवर्स फॉर्मूला। व्हाट द रॉवर्स फॉर्मूला सेज? रॉवर्स फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, रॉवर्स फॉर्मूला के अंदर आपको ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने का है। EL is equal to 0.771 bracket 1.467 minus 0.000732 PA into 0.44 plus 0.733 U0 into EW minus EA। अब आप बोलेंगे सर इतना बड़ा न्यूमेरिकल्स के लिए कैसे आ सकता है ना? सो आप एक दिन में तो आने वाला है तो आ ही जाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना है कि आप एक दिन ऐसे जो फॉर्मूलाज होते हैं उस फॉर्मूलाज को आप क्या कीजिए, आप जहाँ आपका सिटिंग अरेंजमेंट है जस्ट उसके सामने एक वॉल पे पेपर स्टिक कीजिए, उस पर फॉर्मूला लिखिए और उसको डेली देखते रहिए। n नंबर ऑफ टाइम्स आपको उसको देखना है, जितनी टाइम उसको देखेंगे और साथ में न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करते रहेंगे बेस्ड ऑन दैट फार्मूला, देन एंड देन ओनली यू आर गोइंग टू एबल टू लर्न दैट फार्मूला। तभी आपको वो फार्मूला याद रहेगा, नहीं तो फार्मूला याद नहीं रहने वाला है, ठीक है ना? बिकॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज आर दिस। तो इस फार्मूला को याद करने के लिए आपको वो मेथड यूज करना है, नंबर ऑफ प्रैक्टिस करना है उसको, और उसको हमेशा लिखते रहिए। जो चीज़ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज है उसको हमेशा लिखते रहिए और हमेशा उसको देखते रहिए, सो डैट आपको वो चीज़ इजीली याद रह सके, ठीक है? इन डैट आप देख सकते हैं कि PA पैरामीटर्स क्या होता है, U0 क्या होता है, EW तो आपको पता है, EW इज व्हाट? सैचुरेशन वेपर प्रेशर, एंड EA इज द एक्चुअल वेपर प्रेशर। सो PA इज द बैरोमेट्रिक mean barometric reading in mg of Hg, and U0 is the mean wind velocity in kilometer per hour at the ground surface। ground surface हमारा 0 होता है, इसलिए हम ground surface से कैलकुलेट करेंगे, तो अकॉर्डिंगली ग्राउंड लेवल हमारा 0 पॉइंट होता है ना, तो हम U0 that is your initial at wind speed at a initial level of ground, है ना, which can be taken to be the velocity of 0.6 meter height above the ground level। okay, मूविंग अहेड, एनालिटिकल मेथड्स। सो देखिए आपके पास टोटल 3 मेथड है टू कैलकुलेट द इवापोरेशन। द वेरी फर्स्ट वन वाज इवापोरीमीटर, सेकंड वन इज योर एम्पिरिकल फार्मूला, एंड द थर्ड वन इज योर नाउ एनालिटिकल मेथड्स। ओके, सो फर्स्ट में आपने देखा इवापोरीमीटर मेथड्स के अंदर आपके पास 4 थे, है ना, और फिर एम्पिरिकल के अंदर आपको 2 मेथड मिले, 2 फार्मूलाज मिले, एंड एनालिटिकल मेथड के अंदर अगेन
3 मेथड्स हो गए। तो इवापोरेशंस को कैलकुलेट करने के लिए ही सिर्फ आप देख सकते हैं कि टोटल 9 to 10 formulas आर देयर। ओके, सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू, आपको इस तरीके से ही बनाए कि इवापोरेशंस देन 10 formulas, ट्रांसपिरेशन देन 10 formulas, इवोट्रांसपिरेशन देन 2 formulas। मीन्स आपको टॉपिक वाइज पता चलेगा कि कितने फॉर्मूलाज आ रहे हैं। तो जैसे ही आपको क्वेश्चंस में इवापोरेशन दिखाई देगा, आपको तुरंत ही वो चीज़ रिकॉल होगा कि इवापोरेशन के केस में मेरे पास टोटल 10 फॉर्मूलाज थे और वो 10 फॉर्मूलाज में से ही कोई एक फॉर्मूला इसमें इंप्लीमेंट होगा। ओके, सो यू हैव टू प्रिपेयर द शॉर्ट नोट्स एज पर दैट थिंग ओनली एंड you have to remember the formulas. The very first one in the analytical method is the water budget method. Second is the energy balance method or the budget method, and the third one is the mass transfer method. Right. Moving ahead with the one by one, the very first one is the water budget method. Already we have seen in the case of precipitation the water budget equation or or water balance method for different catchment and body surface, right? So here we are going to see the water budget method for evaporation. So outflow, inflow and storage are determined and accordingly the mass balance equation is prepared. So here is the formula to calculate the water budget evaporation by water budget method. So evaporation is equal to S1 minus S2 plus I minus O. आप O भी लिख सकते हैं, Q भी लिख सकते हैं. That all depends on you. So okay, so E is your evaporation, S1 is the initial storage, S2 final storage, inflow minus outflow. So this is a basin storage value, precipitation that is your inflow, evaporation that is your outflow, then runoff that is your outflow. What will be the initial storage? Storage कितना था पहले वो आपको पता होना चाहिए, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा. इनफ्लो होने के बाद और इवापोरेशन हो जाने के बाद और रन ऑफ हो जाने के बाद फाइनली कितना मेरे पास स्टोरेज बचा वो आपका हो जाएगा S2 एंड अकॉर्डिंगली यू कैन कैलकुलेट द इवापोरेशन ऑफ दिस बॉडी. नेक्स्ट, द सेकेंड मेथड इज द एनर्जी बजट मेथड और द एनर्जी बैलेंस मेथड. वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. HN is equal to HA plus HE plus HG plus HS plus HI. Now what are these terms? ये terms है क्या सभी? H है, that means what? एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी हमें इवापोरेशन के लिए किसको कंसिडर किया है? हीट को. तो हीट एनर्जी को डिनोट करने के लिए इन्होंने H से फॉर्मूला में सबको डिनोट किया है, राइट. नाउ HN इज योर नेट हीट एनर्जी रिसीव्ड बाय द वाटर सरफेस. नेट हीट. So net heat can be calculated as Hc 1 minus R minus Hb. Now what is Hc? What is Hb? Okay, so Hc 1 minus R is also said to be as the incoming solar radiation into the surface of the reflection coefficient and albedo's value is R. Now Hb is your back radiation, that will be the perpendicular to the water body, and HA is your sensible heat transfer from water surface to the air. आपका जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वाटर सरफेस से एयर के अंदर उसको हम HA से डिनोट करेंगे. HB विल बी योर बैक रेडिएशंस, जो सोलर से आपके सरफेस पे आया और सरफेस के 90 डिग्री परपेंडिकुलरली जो रेडिएट हो रहा है उसको हम बैक रेडिएशंस बोलते हैं HB. देन योर HE दैट इज योर हीट एनर्जी used up in the evaporation. अब कैलकुलेट करना होगा कि सोलर हीट एनर्जी कितना सरफेस तक पहुंच रहा है, उसमें से कितना एनर्जी बैक रेडिएशंस में जा रहा है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट whatever will be the difference between them, that will give us the energy that is actually used for the evaporations. So HE, heat energy used up in evaporation, and that will be calculated using density of the water multiplied by the latent heat of evaporation and the evaporation in mm. Okay, now Hg. Hg is again a different terms, that is the heat flux into the ground. Hs, the heat stored in the water body. Now Hi. Hi is your net heat conducted out of the system by the water flow. आपका जो सिस्टम है उसमें से कितना हीट बाहर जा रहा है नेट, वो आपका HI हो जाएगा. जो हीट एनर्जी
used up हो रहा है वो He है. Then your net heat energy that is received by the water surface, that is your Hn. नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका वाटर बॉडी है, ये वाटर सरफेस है. इस वाटर सरफेस के अंदर Hc जो है वो आपका सोलर रेडिएशन से जो हीट एनर्जी ला रहा है. देन 1 माइनस आर इंटू Hc, ये आपका क्या हो रहा है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन इनसाइड द बॉडी जा रहा है जो सरफेस वाटर को हीट कर रहा है. देन कम्स बैक रेडिएशन जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस जाएगा. रिफ्लेक्टेड विल बी RHC, that will be perpendicular to the radiation, जो सोलर रेडिएशन आ रहा है उसके परपेंडिकुलर में रिफ्लेक्ट होगा, जो आपको पता ही है सिस्टम क्या है फिजिक्स का. देन द हीट रिफ्लेक्स इनटू द ग्राउंड. ग्राउंड के अंदर भी क्या होगा, पानी गर्म हो जाने की वजह से जो भी वाटर बॉडी के अंदर वाटर है वो जैसे ही हीट होगा तो वो हीट ट्रांसफर किसको करेगा, इनर सरफेस ऑफ द ग्राउंड. तो वो हीट फ्लक्स है ग्राउंड का Hg. इवापोरेशन कैलकुलेट कर सकते हो आप, density into latent heat of evaporation, then lake evaporation. Then Ha is the heat loss to the air, and this is your advection Hi. Okay, so इसको आपको ध्यान रखना है, ये पैरामीटर्स जो भी हैं अंदर वो सभी चीज़ को ध्यान रखना है कि कैसे इसको डिनोट किया गया है. आप देख सकते हैं कि जो उसका नोटेशन फॉर्म है उस नोटेशन फॉर्म से ही पता चल रहा है कि वो क्या डिनोट कर रहा है, राइट. तो इसको आप फिर से आप एक बार देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये होता क्या है. ओके, मूविंग अहेड, हाउ वी आर गोइंग टू रिड्यूस द इवापोरेशन लॉसेस, विच आर द मेथड्स बाय विच वी कैन रिड्यूस द इवापोरेशन लॉसेस. So there are some of the methods that commonly used to reduce the evaporation losses. The very first one is the reduction of the surface area. आपको पता है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ज़्यादा इवापोरेशन रेट ज़्यादा होगा. जैसे ही हम उसको क्लोज कर देते हैं और उसका डेप्थ हम इंक्रीज करेंगे तो इसका इवापोरेशन रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. सो रिडक्शन इन द सरफेस एरिया विल रिड्यूस द इवापोरेशन लॉसेस. So that one is the first method to reduce the evaporation loss. Second one is providing a mechanical cover on the surface of the water body. तो आपको ये चीज़ देखना हो ना तो आपको गुजरात के अंदर जो गुजरात गवर्नमेंट है उन्होंने जो सिटी के अंदर से पास होने वाली जितनी भी कैनाल्स है, वाटर बॉडीज़ है, तो आपको पता है कि जो सिटी का टेम्परेचर होता है वो हमेशा सिटी के बाहर के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है. ओके, उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, मैं वो सभी रीजंस अभी डिस्कस करना नहीं चाहता. सो द टेम्परेचर ऑफ द सिटी इज ऑलवेज हायर देन द टेम्परेचर आउटसाइड द सिटी. सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन इन गुजरात ऑल्सो the Gujarat government has provided some of the mechanical covers, that is the mechanical shed sheet कवर प्रोवाइड की गई है वाटर बॉडीज के ऊपर, so that the heat energy will not evaporate the surface water. surface water इजीली इवोपरेट ना हो पाए इसके वजह से क्या किया गया है कि जो वाटर सरफेस जा रही है, जो कैनाल पास हो रही है सिटी के बीच में से, उसके ऊपर से पूरा सोलर पैनल को एज अ मैकेनिकल कवर, एज अ शीट उन्होंने प्रोवाइड की है, सो डैट हीट एनर्जी जो आ रही है वो इवोपरेशन नहीं होके एक सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं. ओके, सो दैट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गुजरात गवर्नमेंट related to this thing. So by this method also we can eliminate the evaporation losses. The third one is the chemical cover. Now chemical cover किसका हम प्रोवाइड करेंगे ताकि वो इवापोरेशन लॉस नहीं होगा. तो वेरी important from other examinations that what is provided as a chemical to reduce the evaporation losses. So there are total 2 chemicals, cetyl alcohol or its other name is also hexadecanol, and the second chemical is your stearyl alcohol, that is octadecanol. So hexadecanol and octadecanol are the 2 monomolecular layer that are provided on the water surface to reduce the evaporation losses. Okay friends, the third was the chemical cover, second was the mechanical cover, first one was the reduction in the surface area, and the last, that is the fourth one, increase in the salinity. Now
आपको पता है कि सैलिनिटी अगर आप डिक्रीज कर दोगे तो आपका इवापोरेशन रेट बढ़ जाएगा, सैलिनिटी आप इंक्रीज करोगे तो आपका इवापोरेशन रेट डिक्रीज होगा, सैलिनिटी को आप जैसे डिक्रीज करोगे आपका इवापोरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो इवापोरेशन रेट को डिक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, सैलिनिटी को इंक्रीज करेंगे, राइट। So these are the some of the methods to reduce the evaporation loss. Now the last topic is today's transpiration. So what is transpiration? Transpiration is nothing but it is a process of transferring the water molecules that are present in the living plant into the atmosphere in the form of water vapors. तो जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स लिविंग प्लांट के अंदर मौजूद है, प्लांट्स के अंदर, लीव्स के अंदर, स्टेम के अंदर जो भी प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स, वो वाटर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द सराउंडिंग और द एटमॉस्फेयर दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द वाटर वेपर, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। ठीक है। The maximum transpiration occurs during the daytime and while photosynthesis it takes place. जब भी फोटोसिंथेसिस होता है, और आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस इज ऑलवेज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द डे टाइम, मैक्सिमम सनलाइट प्रेजेंस होता है, उस केस में ही फोटोसिंथेसिस अपने मैक्सिमम स्टेज पे होता है, मैक्सिमम लेवल पे होता है, एंड ड्यूरिंग दैट स्टेज ओनली द मैक्सिमम ट्रांसपिरेशंस आर टेकिंग प्लेस. So the maximum transpiration that occurs during the daytime while photosynthesis is around 90%. Okay. Now, what are the factors that are affecting the transpirations? Obviously, the atmospheric vapor pressure, temperature matter करेगा, wind velocity, अगर आपकी wind velocity बिल्कुल भी नहीं है तो उस केस में क्या होगा, wind velocity बहुत ज़्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा, आपको सोचना समझना है. So these are the factors. अपार्ट फ्रॉम डेट, लाइट इंटेंसिटी, अगर आप बहुत ही ज़्यादा लाइट दोगे तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से इवापोरेशन रेट बढ़ जाएगा, सो लाइट इंटेंसिटी मैटर्स. अपार्ट फ्रॉम डेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट, प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो सॉइल में से कितना पानी ले रहा है, वो डिपेंड करता है प्लांट के ऊपर. अगर आपका प्लांट बहुत ही ज़्यादा पानी सॉइल में से मॉइस्चर जो है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, then evaporation from that particular plant will be, transpiration from that particular plant will be maximum, and if that plant is absorbing the moisture from the soil is less, then that from that plant the transpiration will be less, right? Next, how to calculate the transpiration ratio, very important from exam point of view, friends. See, the transpiration ratio is calculated by the total mass of the water transpired by the plant during the full growth. फुल ग्रोथ के टाइम पे टोटल मास ऑफ वाटर कितना ट्रांसफर्ड हुआ प्लांट का, that divide by the mass of dry matter produced. Okay, by using this you can calculate the transpiration ratio, and very important, this thing is to remember that from different plant to plant, crop to crop, the transpiration ratio varies. Okay, if the plant or the crop requires more water, then the transpiration ratio will also increases. Okay, here you can see that the transpiration ratio is directly proportional to the total mass of water transpired by the plant during the full growth. full growth में अगर उस प्लांट को फुल ग्रोथ होना है तो अगर उस प्लांट की कैपेसिटी है कि वो बहुत ही ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो जो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर रहा है तो पानी वो ट्रांसफर भी ज़्यादा करेगा, राइट. सो द ट्रांसपिरेशन रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप, एंड फाइटोमीटर इज अ मेथड टू measure the transpiration. Different crops, here some of the examples of crops are given, that what will be the value of transpiration ratio of different crops. So rice 600 to 800 and wheat 300 to 600. Okay, so these are the some of the examples, and this is now completed lecture. लेक्चर को हम यहाँ कंप्लीट करते हैं, और आने वाले लेक्चर्स में हम इवापोट्रांसपिरेशन एंड इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो है, इनफिल्ट्रेशंस है, देन यूनिट हाइड्रोग्राफ है, ये सबको हम आगे आने वाले सभी लेक्चर्स में कवर करेंगे.
Okay friends, so if you like the lectures and video from the Ekdant Environment Education, so please like and subscribe the channel, and please share with your friends so that they can easily get the lectures free of cost. And I would suggest that accordingly you have to prepare and spend the time in different subjects also at a time. Okay, and जैसे जैसे आपके लेक्चर्स, देखिए आप किसी भी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट्स पे फोकस ना करिए, आप एट अ टाइम आपको दो सब्जेक्ट्स लेके चलना चाहिए, या तो एक मैथमेटिकल्स होना चाहिए या तो एक टेक्निकल होना चाहिए, है ना। इस तरीके के कॉम्बिनेशंस में आप चलेंगे तो आपका एक मूड बना रहेगा, मोनोटोनस नहीं रहेगा, और आप इजीली ज़्यादा टाइम अपने स्टडी पे फोकस कर सकते हैं, है ना। और अकॉर्डिंगली आप मॉक टेस्ट भी स्टार्ट कर देना फ्रेंड्स। Okay, so this is today's lecture, and thanks for watching Ekdant Environment Educations friend.